Hello everyone. Today is our third lecture of Business Studies class 12th. In the last lecture, we discussed about the few topics related to your chapter 1, nature and significance of management. In this lecture, we will discuss about the further topic which is related or important for your examination. I am again saying this part of video is very important than the previous one because this lecture will consider most important topic which actual regularly asked by the examination or by the CBSE board. So let's begin with this topic. There is a few topics we already discussed like meaning and definition of management, characteristics of management, objectives of management and the importance of management. Till importance we covered all the topics. One thing I just want to let you know that many student I see just copy that slide and prepare their notes. Don't do this because in examination the examiner will ask you around 3 mark, 4 mark, 5 mark, 6 marks question. What I'm trying to say that the examination will ask you the short long answers questions, majorly the long answer question, or the heading is very important for examination aspect but the content is also important. So this slide will help you to remember the content, remember the topic, or I can say that the heading while you are preparing for the examination. But one thing remember, many students when just recall that content they just forget at the time of examination. So what you have to do, you have to write the whole thing which I give you, which the book I send you, the PDF of the book I send you. You just write it from that book, the whole thing. You just write it in the examination. You just read it again and again and mug up it. If you want to create your memory strong, then you go for the short notes. But I don't think so with this slide, apart from this slide, you required any short notes. This is the short note for revision purpose only, not for the fair copy, or we can say that the explanation purpose. So what my thing? Next thing, the today's topic will be the nature of management, levels of management, functions and coordination. These four topics are very important, and the questions were belong to these four topics. If I give the weightage for the previous video is around 20%, the weightage of this video is around 80%. So the lecture is very important as the prospect of the examination. Okay, so let's begin with this. What is the nature of the management? One thing I just want to explain what type of question the examiner will ask you in the examination. Is the management is art or a science or a both? Frequently asked the question. Management is art or a science? Management is art or a science? So what you have to do, you have to first justify that yes, management is an art. Why management is an art? You have to explain that. Okay, then you have to justify what is science. First you have to justify what is art, what is science. Then you have to justify yes, management is an art, management is a science, and then you have to justify that yes, management is an art and management is a science both. तरीका समझ में आया कैसे लिखना है? पहले आर्ट को समझाना है, व्हाट इज आर्ट, फिर आपको एक्सप्लेन करना है यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट, आपको समझाना है व्हाट इज साइंस, देन आपको एक्सप्लेन करना है हाउ मैनेजमेंट इज एन
science, or then you have to merge with both. Yes, management is an art as well as science. तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. फर्स्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. व्हाट इज आर्ट? एक्चुअली art is personalized application of a general theoretical principle to achieve the goal. Elaborate करूं तो art is what I am doing in my way, what you are doing is your way. Means every person his on his ability, or we can say that his own conceptions, or we can say that his knowledge, experience, he just work in his own way. So art is what? Like if I am very good in cricket, you are very good in hockey. It is your art. What is my art is I am very good in a cricket. Somebody is very good in a dance. Somebody is very good in a singing. So that's why we call the artist, right? So art is inherent capacity. One thing added. Art is inherent capacity, जो मेरे अंदर स्वतः ही है. अब वो कैसे आई है? वो एक्सपीरियंस से आई है, वो मेरे इंटेलिजेंस से आई है, वो मेरे आईक्यू से आई है, ईक्यू से आई है. दैट इज मैनी थिंग. तो दैट इज वी कॉल्ड आर्ट. अब व्हाट इज आर्ट? द बेसिक फीचर्स. तो फर्स्ट थिंग, आर्ट एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज यूजली नहीं होता, थियोरेटिकल नॉलेज होता है. ठीक है? थियोरेटिकल नॉलेज मतलब थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स रहेंगे, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल नॉलेज रहेगा, पहले से कुछ पता रहेगा, जो जरूरी चीजें होती है वो रहती है आर्ट्स में. सेकंड, आर्ट को आप वो साइंस कॉमर्स आर्ट वाला में समझना, ये आर्ट वो आर्टिस्ट वाला आर्ट है ना, ताकि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप कैसे काम करते हैं. अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है, लाइक अगर मुझे कोई टास्क दिया जाता है, ये एक आपने देखा ना 1 मिनट चैलेंज होता है. 1 मिनट चैलेंज, 1 मिनट चैलेंज में हर एक इंडिविजुअल को 1 मिनट ही मिलता है फॉर सेम टास्क. बट जो उस टास्क को पहले परफॉर्म कर देता है वो विनर हो जाता है. अब वो उसमें आर्ट लगता है उसका बेटा, वो किस तरीके से वो उसके अंदर से निकलता है. वो ऐसा नहीं है कि वो पहले एक प्री एग्जिस्टेंस में सब एक साथ जीत जाएंगे, नहीं, कोई एक जीतेगा जो उसको बहुत आर्ट के तरीके से करेगा. दैट इज एन थियोरेटिकल नॉलेज. सेकंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है. किससे? पर्सन टू पर्सन. वो किस तरीके से किस सिचुएशन में वो अपने आर्ट को यूज करे. एंड थर्ड थिंग इज दैट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी. अगेन आई एम सेइंग इट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इज बेस्ड ऑन नॉलेज, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस, सो दैट दिस कंटेन द आर्ट. ये आंसर तो हुआ बेटा व्हाट इज आर्ट. अब व्हाई दिस मैनेजमेंट इज एन आर्ट? So you can explain in the same manner that management also exists in theoretical knowledge. मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल्स यूज होती है, डे टू डे फंक्शंस यूज होते हैं. मैनेजर जो होता है उन स्किल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, नॉलेज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करता है. मतलब डिपेंड करता है मैनेजर टू मैनेजर. और मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी रहती है. क्रिएटिविटी कैसे रहती है बेटा? वो प्रैक्टिस कैसे रहती है? जैसे कि अगर कोई सिचुएशन आई है तो मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली उसको फेस करता है, अपने अकॉर्डिंगली. हर मैनेजर जो जितना भी सिचुएशन फेस होता है वो अपने अकॉर्डिंगली करता है. डिपेंड करता है बेटा वो किस तरीके से कर रहा है. ठीक है? उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस से कर रहा है, उसके नॉलेज से कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है. तो यहाँ पे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, और जो कि आर्ट के तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. नाउ बिगिन विद मैनेजमेंट इज एन साइंस. अब साइंस आपने पढ़ा हुआ है. साइंस में एक एग्जांपल देता हूं आपको, पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा. आपने ग्रेविटी फोर्स पढ़ा हुआ है, ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा हुआ है. व्हाट लॉ ऑफ ग्रेविटी सेज? लॉ ऑफ ग्रेविटी सेज इफ यू पुट सम आर्टिकल और समथिंग फ्रॉम द हाई और फ्रॉम द अपसाइड, इट ऑलवेज गोज टू डाउन. वो नीचे गिरेगा. दैट इज द लॉ ऑफ अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी. अब लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो सब जगह लग रहा है क्या? हाँ. ये क्या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? मतलब ये जैसा बताया गया है वैसा ही लगेगा, बिल्कुल लगेगा बेटा, जैसा बताया है वैसा ही लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला. ठीक है? नेक्स्ट, क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटी ऐसे ही पता चल गया या कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ था? आपने सुना होगा ना, क्या गिरा था? एप्पल, है ना? एप्पल फॉल्स ऑन द हेड ऑफ न्यूटन.
और उसने बता दिया था अच्छा ये ऊपर से नीचे गिरा, क्या सारी चीजें ऊपर से नीचे गिरती है और उसने फिर दूसरी चीजें ऊपर से नीचे गिराई होगी, आई डोंट नो, बट फिर पता चला होगा कि हाँ सब चीजें जब नीचे गिर रही है तो उसने रूल निकाला, लॉ निकाला कि अच्छा ऊपर से अगर सारी चीजों को नीचे गिराया जाए तो नीचे का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट करता है, दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये बताओ, मैं मनासा में अगर वो ऊपर से किसी एप्पल को गिराऊंगा तो वो नीचे गिरेगा, अगर मैं नीमच में गिराऊंगा तो नहीं गिरना, या मैं अगर इंदौर चला गया तो बिल्कुल नहीं गिरना, दिल्ली तो पॉसिबल ही नहीं है, और लंदन चला गया तो सर वो हवा में ही रह जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, कहीं से भी गिराओ, मतलब यूनिवर्सल वैलिडिटी है। अब ये मतलब सर कि यूनिवर्स में गिराओगे तो नहीं गिरेगा, है ना, डोंट टेक इट पर्सनल, ठीक है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है सब जगह एक जैसा लग रहा है। अब मैं एक्चुअल साइंस पे नहीं आ रहा हूं, अब मैं आ रहा हूं मैनेजमेंट। साइंस समझ में आ गया, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, हर नॉलेज लिखा हुआ है जिस तरीके से लिखा हो। जब आप केमिस्ट्री की लैब में कभी गए होंगे तो एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां देखना एक एक लाइन आप पढ़ते जाते हो और फिर केमिकल्स को मिलाते जाते हो, दैट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। थोड़ा सा केमिकल अगर आगे पीछे कर दिया तो बेटा देयर इज अ चांस ऑफ ब्लास्ट, है ना। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होता है और यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ अ साइंस। व्हाट इज साइंस? अब हमारा मैनेजमेंट साइंस कैसे होता है बेटा, कि हमारे मैनेजमेंट में भी कुछ थियरीज हैं जिसको एज इट इज आपको अप्लीकेबल करना होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में व्हाट इज थियरीज। तो हमारे भी मैनेजमेंट में कुछ थियरीज हैं जिसको आप एज इट इज अप्लीकेबल कर सकते हैं, कंसेप्ट्स हैं जिसको आप एज इट इज अप्लीकेबल कर सकते हैं। मैनेजमेंट के अंदर भी कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि मैनेजर जो होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में, अपने नॉलेज के साथ में न्यू सिचुएशन को फेस करता है। बट एक थिंग बताना मुझे, जब मैनेजर उस चीज को फेस कर रहा होता है तो अगेन वो किसी के साथ शेयर करता है या फिर अगेन वो वही सिचुएशन फेस करता है, तो देखो उसके पास एक्सपीरियंस मिशन के बेस्ड नॉलेज आ गया है ना, बिल्कुल आ गया। उसको पता है कि ये चीज इस तरीके से ही होनी है तो बिल्कुल होनी है ना। लाइक एक टीचर आपको होमवर्क देता है, एक दिन होमवर्क दिया, दूसरे दिन कोई स्टूडेंट करके नहीं लेके आया, उसने पनिशमेंट दे दिया। अब स्टूडेंट को एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया कि यार इस सर तो पनिशमेंट देते हैं यार, नेक्स्ट टाइम पे वो सब होमवर्क करके लेके आए। अब टीचर ने क्या किया था बेटा, टीचर ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या ऐसा करते हैं इनको थोड़ा सा पनिशमेंट दे देते हैं, अगले दिन देखते हैं क्या हिट एंड ट्रायल होता है, अगले दिन सब करके लेके आ गए, उसको एक्सपीरियंस हुआ, उसने शेयर किया, दूसरे टीचर ने सेम किया। क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्योंकि जितने भी साइंटिफिक, जैसे आपने बोला था ना यूनिवर्स में तो सर अप्लीकेबल नहीं होगा, एग्जैक्टली यहां पे भी मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है बेटा वो यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं हो सकते, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक साथ नहीं लग सकते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं, वो उस टाइम पे उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं कि वो जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट के, वो उस सिचुएशन में लगे या नहीं लगे। तो यूनिवर्सल वैलिडिटी में हम लोगों को लगता है कि हाँ यहां पे जाके थोड़ा सा दिक्कत है, बट हाँ हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये साइंस तो है, बिल्कुल इसको बोल सकते हैं कि हम लोग ये साइंस है, और फुल फ्लेज्ड साइंस नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? फुल फ्लेज्ड साइंस नहीं बोल सकते। ये लिख लेना, कहीं मिलेगा नहीं आपको लिखा हुआ, तो ये लिख लेना, नोट कर देना। मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड साइंस बट वी कैन कॉल्ड इट इम्प्योर सोशल या सॉफ्ट साइंस। अब वो क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज सॉफ्ट साइंस, इम्प्योर साइंस, सोशल साइंस, ये होमवर्क है आपका, लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। अब लास्ट में आप लोग इसको कंक्लूजन दे दोगे कि यस वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, इट फुलफिल्स द ऑल क्राइटेरिया बट द सेम टाइम it is not fulfill that criteria, we called it the management is having a universal validity, so that we not called it a full-fledged science, we can call it a management is an impure social or a soft science। इतना क्लियर है? दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आते ही आता है। नेक्स्ट थर्ड थिंग इज दैट मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन से मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल कॉपी में भी नोट कर लेना। प्रोफेशंस में कौन कौन आते हैं? प्रोफेशन में आते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, डॉक्टर्स एटसेट्रा। अब मैं सीए सीएस को तो छोड़ देता हूं, ज्यादा नॉलेज नहीं है। डॉक्टर से हम लोग वेल अवेयर हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड। डॉक्टर्स वेल रिनोन्ड प्रोफेशन। अच्छा वन थिंग,
क्या डॉक्टर बनने के लिए नॉलेज होना जरूरी है? बिल्कुल। हर कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो नॉलेज भी सिस्टमेटिक होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, कोई डॉक्टर किसी को ट्रीटमेंट कर रहा है, तो पहले वो पूछता है आपसे, नॉलेज गैदर करते हैं आपकी इलनेस का, कि भाई आपको हुआ क्या, आपके डिसीज के बारे में वो नॉलेज लेता है, फिर वो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, और ट्रीटमेंट उसका नॉलेज के बेसिस पे होता है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रहता है प्रोफेशन में। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों किया बेटा? क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। हर कोई का मतलब ऐसा होता है कि यार आज मैं सोचूं कि यार चलो मैं एमबीबीएस कर लेता हूं यार, नहीं। देयर इज एन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया है इन्होंने? इन्होंने कोई एग्जामिनेशन रखी होगी, तभी जाके आप डॉक्टर बन सकते हो। जैसे कि नीट का एग्जाम होता है, उसके बाद वो जो एमबीबीएस के 4 से 5 साल, उसके बाद वो क्या आपका आर्टिकलशिप इंटर्नशिप रहता है ना? ये वर्ड इसमें नहीं है, वो भी चाहो आप तो लिख सकते हो। इंटर्नशिप और आर्टिकलशिप भी जरूरी रहता है प्रोफेशन के लिए, सब में होती है। चाहे आप लॉयर बनो, सीए बनो, सीएस बनो, सीएमए बनो, सीएफए बनो, डॉक्टर बनो, सब में क्या रहता है? आपका एक आर्टिकलशिप इंटर्नशिप रहता है। तो एंट्री रिस्ट्रिक्ट है, हर कोई बंदा इस वर्क को नहीं कर सकता, उसको एक एग्जाम पास करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर एक, जैसे कि डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स के लिए एक एसोसिएशन होता है, उनका एक संगठन होता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर का संगठन है। इंडिया अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो है वो सीएस के लिए है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ये सीए के लिए है, तो ये सबके लिए रहता है। कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे लिए बेटा, जैसे डॉक्टर्स को देखा होगा व्हाइट अपैरल रहता है उनके साथ, लॉयर को देखा होगा ब्लैक पहन के घूमते इतनी गर्मी में, है ना? तो वो ब्लैक अपैरल है, वो एक बो साइड टाइप जैसा उन्होंने लगा रखा होता है, वो कोर्ट में ब्लैक पैंट और ब्लैक कोट में ही जाते हैं, है ना? वो मतलब बोल सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट रहता है वो कोर्ट का। तो ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं जो प्रोफेशन को ध्यान में रखना पड़ता है, ये प्रोफेशन के रहते हैं। और नेक्स्ट थिंग, वो सर्विस मोटिव रहते हैं, वो प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। ये सब किसका इंपॉर्टेंस है? अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? अभी तक मैंने मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं समझाया, मैंने आपको समझाया व्हाट इज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट कैसे प्रोफेशन हुआ? तो मैनेजमेंट पहला चीज तो हाँ, मैनेजमेंट में वेल नॉलेज ऑफ बॉडी होता है, क्योंकि आप एमबीए बीबीए करते हो, अपनी स्किल्स को वहां पे सीखते हो। बात हुई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की, तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैनेजर बनने के लिए कोई एग्जामिनेशन आपको क्लियर करनी पड़े। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अगर आप में स्किल्स हैं लोगों को संभालने की, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है, मैनेजमेंट इज मेंट टू मैनेज द थिंग्स और अ पीपल, ये बात मैंने आपको बताई थी। और अगर आप में स्किल्स है तो आपके पास एमबीए नहीं भी है, आपके पास एमबीए का डिग्री नहीं भी है, तो भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एंट्री, इतना कोई भी इसमें इंटर कर सकते हैं। प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ पे ऐसा कुछ एज सच कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा एज सच कोई रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे नहीं मिलते। नेक्स्ट थिंग इज दैट कोड ऑफ कंडक्ट जो रहता है वो भी एज सच नहीं रहता, बट हाँ सर्विस मोटिव तो ये रहता है, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये लोग यूजली काम करते हैं। तो प्रोफेशन को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यार फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन है, बट हाँ मैं इसको बोल सकता हूं कि बट इट्स ओनली अ डेवलपिंग प्रोफेशन। क्या बोल सकता हूं मैं? डेवलपिंग प्रोफेशन बोल सकता हूं, फुल फ्लेज तो नहीं बोल सकता। इतना क्लियर हुआ? तो आपको आंसर कैसे लिखना है समझ में आया। अब डिटेल जो है आप बुक में रीड आउट करोगे, यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बेटा ये जो डायग्राम है, डायग्राम पहले कॉपी में बनाना, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, लेवल्स होते क्या है। लेवल्स यूजली कोरिलेट करते हैं, वी कैन से दैट द रिलेशन को, मतलब देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट। अब जैसे टॉप पे अगर कोई बंदा है तो वो सुपीरियर हो गया मिडिल वालों के लिए, और मिडिल वाला सबऑर्डिनेट हो गया। पर मिडिल पे कोई बंदा है वो लोअर के लिए सुपीरियर है, और जो मिडिल वाला जो है वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं ध्यान से, टॉप मिडिल और लोअर। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके के लोग होते हैं, 3 स्टेजेस पे काम करते हैं। एक वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं, एक वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाते हैं। वो सब कहां आते हैं? वो सब आते हैं टॉप मैनेजमेंट पे, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा,
सब पॉलिसी मेकर्स में आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं। मिडिल लेवल पे कौन आता है? मिडिल लेवल पे आते हैं मैनेजर्स, यूजली द मैनेजर्स और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट। जो रूल्स टॉप मैनेजमेंट बनाता है, उस रूल्स को इंटरप्रिटेट करना, उस रूल को समझना और आगे समझाना, ये इन लोगों का काम होता है। और उन रूल्स को इंप्लीमेंटेशन करवाना खुद नहीं करेंगे, करवाएंगे नीचे वाले लेवल से। तो ये कहां आएंगे? मिडिल लेवल पे। और ऑपरेटिव या लोअर लेवल जो होता है बेटा, ये सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडर्स, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। जो इंटरप्रिटेशन किया है पॉलिसी को, वो इनको बताया जाएगी और अब ये एग्जीक्यूट करवाएंगे। और ये एग्जीक्यूट किससे करवा रहे होंगे बेटा? तो अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार वर्कर्स जो है या लेबर हुए, वो लोअर लेवल पे आते हैं। वो लेबर्स, वो बेटा लोअर पे नहीं आते, वो बिलो लोअर पे आते हैं। ठीक है, अभी हम मैनेजमेंट, बेटा पहला चीज, ये लेवल पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के, मतलब ये लेवल है मैनेजर्स के, जो मैनेज कर रहे हैं चीजों को, जो चीजों को मैनेज कर रहे हैं वो मैनेजर हैं। तो बताओ क्या लेबर मैनेज करेंगे? किसी नहीं कर रहे, वो तो खुद ही मैनेज हो रहे हैं। उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है जो उनको मैनेज कर रहा है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे लोअर लेवल पे नहीं आते। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले मुझे एक चीज और दूसरा चीज, अब यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया इसीलिए बोल रहा हूं कि नोट कर लेना। ये जो एरो दिख रहा है नीचे साइड जा रहा है, ये नीचे साइड एरो के नीचे लिखा हुआ है प्लान, पॉलिसी, ऑर्डर और कमांड। इसका मतलब ये बेटा कि जितने भी प्लान बनेंगे, पॉलिसी बनेंगे, ऑर्डर बनेंगे और कमांड बनेंगे। और एक चीज इसमें लिख देना ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज लिख देना ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऊपर से नीचे जाती है। मतलब पापा आपको ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि बेटा ये तेरे को काम करना है और तू जा और इस काम को करके आना, तुम जाना और इस काम को करके आना। ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से कहां जाएगी? टॉप से मिडिल और मिडिल से लोअर पे। तो जितने भी प्लान्स, पॉलिसी, ऑर्डर, कमांड, वो एरो क्या बता रहा है, कहां से आ रहा है? बनेगा ऊपर, नीचे जाएगा, इंटरप्रिटेट होगा और नीचे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट नीचे से ऊपर क्या जा रहा होता है बेटा? तो नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, जैसे लोअर लेवल को अगर कोई दिक्कत है तो वो सजेशन देंगे, कंप्लेंट करेंगे, तो वो लोअर लेवल वाले मिडिल वाले को करेंगे, मिडिल वाले कहां तक पहुंचाएंगे? उसको टॉप लेवल तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से लेवल्स की हियरार्की चलती है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार बुक से रीड आउट करना। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है इस सिचुएशन में तो मुझे मैसेज करना, हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पे 5 चैप्टर है आपके। इसी फंक्शन टॉपिक पे 5 चैप्टर है। तो हम यहाँ पे अभी शॉर्ट शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। एक एरो देख लेना बेटा, वो एरो किस साइड जा रहा है ना? और वो एरो एक चीज जो नोटिस कर रहा है, जो मैं आज ही नोटिस करवा देता हूं आपको, कि जब भी कंट्रोलिंग एंड होता है तो अगेन प्लानिंग शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स चला है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो वो प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं कि भैया हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीजें लगेगी? तो पहली बात, प्रोडक्शन के लिए लगेगा मशीनरी, रॉ मटेरियल, मेजर चीजें बता रहा हूं ना, छोटी छोटी नहीं। रॉ मटेरियल, मशीनरी, नेक्स्ट थिंग उसके बाद लगेगा लेबर और फैक्ट्री। ये 4 चीजें हमें चाहिए कि ऑर्गेनाइज हम लोग करना पड़ेंगे। तो फैक्ट्री, रॉ मटेरियल, ये सब तो हम लोग ऑर्गेनाइज कर देंगे, और स्टाफिंग में हम लोग लेबर को रिक्रूट कर देंगे। स्टाफिंग का मतलब होता है बेटा स्टाफ, स्टाफ सुना होगा ना आपने वर्ड। स्टाफ का मतलब होता है बेटा कि बोल सकते हैं एम्प्लॉयर्स को हायर करना, मतलब काम पे लगाना, राइट मैन को राइट प्लेस पे, राइट पर्सन को। मतलब इसका अगर सिंपल से अगर आपको याद रह जाएगा बहुत इजीली और आप एग्जाम में कोट करके आना अच्छा लगेगा, प्लेस अ राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस फॉर अ राइट जॉब एट अ राइट टाइम। इस चीज को कोट करके आना, एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे और हाईलाइट अच्छा होगा। उसके बाद क्या करना है आपको? ये सब लगा दिया, रिक्रूट कर दिया, फैक्ट्री में पहुंचा दिए सारे लेबर्स को, रॉ मटेरियल को, सब कुछ है, मशीन्स आ गई, सब कुछ आ गया है, ऑर्गेनाइज भी हो गया, स्टाफिंग भी हो गया है। पर एक बात यहां तक सुनना, जब तक स्टाफिंग होती है ना, तब तक तो प्लानिंग ही हो रही होती है ना। चाहे उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को अलग कर दिया है प्लानिंग से, पर एक बात बताऊं मैं, अभी तक तो प्लानिंग ही हुई है। अभी तक क्या वर्क स्टार्ट हो चुका है? क्या सोच के देखना, क्या अभी तक वर्क स्टार्ट हो चुका है? क्या वर्क अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है बेटा? वर्क तो स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग से। अब आप लेबर को बोलोगे कि रॉ मटेरियल को मशीन में डालो और फिनिश्ड गुड्स बनाओ,
अब क्या शुरू हुआ है, अब आपने डायरेक्ट किया है कि उनको, और डायरेक्ट करने के बाद में अब आपका प्रोडक्शन क्या हुआ है, शुरू हुआ है। वी कॉल्ड इट द डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के बाद अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग नहीं हो रही हैं, या कुछ चीजें हैं जो आपको लग रही है कि और इंप्रूव होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर क्या करोगे बेटा, कंट्रोलिंग करना चालू कर दो। जैसे ही कंट्रोलिंग करना चालू कर दोगे, वो वर्क जो होगा वो फिनिश होता जाएगा, और अगेन आपको नेक्स्ट वर्क के लिए क्या करनी पड़ेगी, वापस से प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मम्मी रात को ही प्लान कर लेती है कि सुबह क्या बनाना है, और जैसे ही सुबह का खाना बन जाता है तो जो 3-4 बजे तक प्लान कर लेती है कि शाम को डिनर में क्या बनाना। और जब शाम का डिनर निपट रहा होता है तो रात को सोते वक्त में उसको समझ में आ जाता है कि लंच के लिए क्या बनाना है वापस। तो समझ पा रहे हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड अगेन प्लानिंग। तो जल्दी से मैं इनका डेफिनेशन दे देता हूं आपको, क्योंकि आगे नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन टॉपिक्स को हम वाइडली डिस्कस करेंगे। Functions of management involves the planning, organizing, staffing, directing and controlling these activities of the individual to achieve the predetermined goal. Planning is what? Planning is a process to decide in advance. सुनना अच्छे से, planning is a process of deciding in advance what is to be done, when, how and by whom. मतलब क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, ये सब किसका पार्ट बनेगा बेटा, प्लानिंग का। तो आज आप कहीं खड़े हो और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो ना, तो दैट इज योर प्लानिंग। लाइक यू आर प्लान फॉर योर आफ्टर 12th, कि 12th के बाद मुझे क्या करना है ग्रेजुएशन में, दैट इज योर प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग फील्स द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड अ फ्यूचर पोजीशन दैट यू वांट टू अचीव। Okay, what is organizing? Organizing and assigning of duties, tasks, authorities, allocation of resources, etc. तो organizing में you just organize the things or material. Staffing is what? Staffing is what? To acquire the adequate and qualified employees. Means place a right person at a right place. Okay. Next, directing is what? Directing is to lead, influence, guide, supervise or motivate the people to attain that the organizational goal. गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो आप लोगों को गाइड कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लानिंग पॉलिसीज बनाई हुई थी, वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट करना, वो सब कुछ कहां आता है, डायरेक्टिंग में। और कंट्रोलिंग मींस व्हाट? कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि अगर आपके टारगेट में या प्लानिंग में कोई डेफिशिएंसी आ रही है, तो आप उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए कंट्रोल का यूज करते हो, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या हो सके बेटा, वो परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकते हैं और मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का एक डेफिनेशन अगर मैं पढ़ता हूं, जो आपको लिख के ही आना है और लिख ही लेना। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्प्लिश ऑफ अ ग्रुप गोल। अब इसका मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। एक एग्जांपल देता हूं, बचपन में मैंने भी कहानी सुनी थी एक, और वो कहानी का एग्जांपल ले लो आप, है ना। एक दीवार है ठीक ठाक सी, ज्यादा कोई मजबूत दीवार नहीं है ना, घर की दीवार नहीं बोल रहा, ठीक ठाक सी दीवार है ईंट की, वो रखे हुए। आप अकेले को उसको धक्का देने का बोला गया, वो नहीं हिली। 2 लोग आए उससे, वो भी नहीं हिली। 3 लोग आए, नहीं हिली। अब वो 3-4 लोग उस लंबी सी दीवार पे 3-4 अलग अलग जगह से धक्का दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या वो दीवार हिलेगी? क्या नहीं हिलने वाली, वो वॉल एक जगह रहेगी। और वो 3-4-5 लोग इकट्ठा हुए और दीवार की एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे, एक ही साथ, एक ही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं है कि 2 उधर खड़े हैं 2 इधर खड़े, एक ही डायरेक्शन में उस वॉल को पुश करते हैं, बहुत तेजी से पुश करते हैं और वॉल गिर जाती है। What we called it, it is a synchronization of effect। मतलब आपके एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पे सेम एफर्ट से लगाना, इज अ सिंक्रोनाइजेशन।
और वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स भी क्यों हो रहा है, ताकि आप क्या अचीव कर पाए, आपके ग्रुप के गोल या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर पाए। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन is involve synchronization of individual efforts toward the completion of group goal. अब coordination is a process which harmony is established among the different activities of an organization. एक definition ये भी है, इसको भी एक बार याद करने का कोशिश करना। इसको मैं explain कर देता हूँ। Coordination is a process to establish the harmony between the departments. For example, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है जो सेल्स को देख रहा होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है। ये सब डिपार्टमेंट वर्क कर रहे होते हैं। इन सब में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के पास में एक ऑर्डर आया बहुत अच्छा बल्क में, उसने सेल्स डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर होगा वो किसको दिया होगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने ये ऑर्डर के लिए बोला होगा परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट के मैनेजर्स की ज्यादा पड़ती नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसने उसको एज ही ऑर्डर बता दिया, उसने उसको एवं ही ले लिया। जब सेल्स डिपार्टमेंट को ड्यू डेट आई कि चलो यार अब इनको सेल करना था, ये ड्यू डेट थी, उसने उससे डिपार्टमेंट से बोला, मैन्युफैक्चरिंग से, कि भैया यार वो गुड सेल करना था तो आप मुझे बता दो ये इतना क्वांटिटी में गुड्स चाहिए। तो बोले क्या सर मैंने तो उनको बोल दिया था, उन्होंने लाया नहीं। परचेज डिपार्टमेंट से पूछा कि भैया आपने वो रॉ मटेरियल इनको प्रोवाइड नहीं किया। परचेज बोले कि इसने मेरे को ऐसे ही दिया था हवा में, ऐसा कुछ मेरे को फॉर्मली तो बोला नहीं, तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया, मुझे लगा ऐसे ही बोल रहा होगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का एक लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने चक दे इंडिया देखी होगी, चक दे इंडिया। चक दे इंडिया में आपने देखा होगा तो दोनों जो स्ट्राइकर होते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के, वो दोनों स्ट्राइकर एक दूसरे को पास ही नहीं करते। देखा होगा अगर आपने मूवी अगर आप देखते हो, यूजली तो मैनेजमेंट हमेशा मूवीज के या फिर गीता के अकॉर्डिंगली बताई जाती है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन वहां पे नहीं हो पाता तो लास्ट में जब फाइनल हम लोग खेल रहे होते हैं तब आपने सुना होगा एसआर के बोलते हैं कि भैया तुम लोगों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इंडिया हार जाएगी, तुम लोग इंडिया को हरा दोगे। तुम लोग इंडिया साइड से नहीं, तुम लोग ऑस्ट्रेलिया साइड से खेल रहे हो। दैट इज वी कॉल्ड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन शुड बी अमंग्स दिस फ्यू थिंग्स जो आपको सिंक्रोनाइज करती है एफर्ट्स को, और वो एफर्ट्स शुड बी टू अचीव दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में चाहिए, आपके प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजेशन के, स्टाफिंग के, डायरेक्टिंग के, कम्युनिकेशन के, कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर, मोटिवेशन, मोटिवेट आप लोगों को कर रहे हो उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लीड अगर आप कर रहे हो, लीडरशिप भी क्वालिटी होती है तो वो भी कोऑर्डिनेशन से आती है, और कंट्रोल अगर आप कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन से आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कोऑर्डिनेशन से आती है, ठीक है। अब बहुत सारा डिटेल आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बुक में मिलेगा, एक बार रीड आउट करने का कोशिश करना, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन की दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये याद करने का कोशिश करना, ठीक है। ये मैंने ऊपर डेफिनेशन आपको बता दी। अब नेचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स, मतलब अगर आप इंडिविजुअल एफर्ट डालोगे तो इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप एफर्ट, मतलब पूरे ग्रुप को एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है बेटा, क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। मतलब एक बार कोऑर्डिनेशन कर दिया उसके बाद बोले अब नहीं करेंगे, नेक्स्ट उस गेम में तो कर दिया था हमने सेमीफाइनल में, फाइनल में नहीं करेंगे। क्यों करेंगे यार, एक बार कर दिया ना, नहीं, अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा। ऑल परवेसिव होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन हर जगह लगता है। आप घर पे भी देखेंगे बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं चलेगा। आप छोटी से छोटी फैक्ट्री से बड़ी फैक्ट्री में, आप हमने स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन होता है, लेक्चर्स डिसाइड होते हैं। लेक्चर्स अगर कोई नहीं ले रहा होता है तो दूसरा सब्स्टिट्यूट टीचर वहां आके लेक्चर्स ले रहा होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, डेलिब्रेट फंक्शन होता है। डेलिब्रेट फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होता है कि खुद से हो जाता है, कोऑर्डिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। डेलिब्रेट का मतलब होता है बेटा कि आपको खुद से इसको डेवलप करना पड़ता है। बहुत बार हमने सुना हो गया है जी सर मैं क्या करूं, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा मेरे साथ में,
ये सुना होगा सर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा। अगर एक भी बंदा कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो ग्रुप एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेलिबरेटली इसको क्या करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये इटसेल्फ एस्टेब्लिश होने वाला नहीं है। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या ऐसा था क्या कि नहीं सेल्स मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कोऑर्डिनेट करना, तू ही कोऑर्डिनेट करना, तू उसको प्रोडक्शन वाले को भी बताना और तू परचेस वाले को भी बताना? नहीं, सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल्फ कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, समझ में आया बेटा इतना, है ना? अब कोऑर्डिनेशन 3 लेवल पे होता है। कोऑर्डिनेशन टॉप टू मिडिल पे भी रहेगा, मिडिल टू लोअर पे भी रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन ऐसे भी वर्क करता है, आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे दूसरा चीज, व्हाट इज इंपॉर्टेंस? तो इंपॉर्टेंस में आप ये भी लिख सकते हो, और इंपॉर्टेंस में ये चीज है ग्रोथ इन साइज। ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वहां पे बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, बट वहां पे बहुत बार लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। जितना ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतना ज्यादा लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन रहता है। बट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा भी है और कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है तो वो क्या रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में मदद करेगा। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि फंक्शनल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शन। और इन डिपार्टमेंट, डिवीजन और सेक्शंस में कोऑर्डिनेशन ही एक चीज है जो क्या करती है, ऑब्जेक्टिव को और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करती है। स्पेशलाइजेशन, कोऑर्डिनेशन से स्पेशलाइजेशन को यूज किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि एक बंदा अगर किसी चीज पे, जैसे उसने बोला था अगर वो सेंटर फॉरवर्ड पे खेल रही है, इधर साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड, मिडिल साइड में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं हॉकी में, आपने सुना होगा, या फुटबॉल में। उनके बीच में देखना कोई स्पेशलाइजेशन होता है जो आगे खेल रहा होता है फॉरवर्ड, एक होता है जो डिफेंस में खेल रहा होता है, स्पेशलाइजेशन। अब जब स्पेशलाइजेशन वाले अपनी सही प्लेस पे होके कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस ग्रुप गोल को, या फिर बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के। इतना क्लियर हुआ? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ अ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले, कोऑर्डिनेशन नीड टू परफॉर्म बिटवीन ऑल फंक्शंस, लाइक कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में भी लगेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी लगेगा, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में और कंट्रोलिंग में, सब जगह कोऑर्डिनेशन लगता है। और नेक्स्ट थिंग, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे लगता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो। तो इस तरीके से वी कैन से दैट कि मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो कोऑर्डिनेशन के बिना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? एसेंस का मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूं तो आत्मा है मैनेजमेंट की। अगर आपको किसी भी चीज को मैनेज करना है तो बिना कोऑर्डिनेशन के आप मैनेज नहीं कर सकते। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एन मैनेजमेंट। तो यहां पे हमारा कोऑर्डिनेशन टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच। मैंने अगेन बोला है, नोट्स आपको बुक में से बनाना है। दिस इज द शॉर्ट नोट जो पीपीटी आपको एग्जाम टाइम पे हेल्प करेगा। आपको जितना भी रीड करना है पूरा बुक से रीड करना है। अब ये चैप्टर हमारा फर्स्ट खत्म हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडिशनल है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। आपको वो राइट इट डाउन करना है और टॉपिक वाइज इस चैप्टर को खत्म करना है। थैंक यू सो मच। हैव अ